Times now. Those were the headlines at this hour. Now, the big story, viewers, that we are tracking for you is about how the bridge that we told you about in Gujarat, how that split into two. A truck left hanging and multiple vehicles plunging down with the debris. Now, this horrific scene is from Gujarat's Vadodara, where a portion of Gambhira Bridge over the Mahisagar River collapsed, leaving 13 people dead and several injured. Now, this incident happened, in fact, yesterday, and it is a crucial connecting road between central Gujarat and Saurashtra. It is a very, very important bridge from that perspective, from the perspective of connectivity. Locals rushed to the spot within minutes, trying to help victims and alerting the emergency services. The irony is that days ago, Gujarat Chief Minister had reviewed the state's infrastructure and had asked for it to be monsoon ready. The question is, how then such a key bridge collapsed so suddenly? ગંભીરા બ્રિજ જે સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતને જોડતો આણંદ અને પાદરાને જોડતો આ બ્રિજ આજે વચ્ચેનો એક ભાગ એક સ્લેબ એ ધરાશયી થતા લગભગ 5 જેટલા નાના મોટા સાધનો અંદર ખાબક્યા હોય એવી વિગતો પ્રથમ પ્રાપ્ત થઈ છે। 3 જણના મૃત્યુ થયા છે, 5 જણને આપણે રેસ્ક્યુ કર્યા છે અને 5-6 જણા જે સારવાર કરી અને એમને રજા પણ આપી છે અને 5-6 સારવાર હેઠળ છે। Now, viewers, in a shocking turn of events, the tragic collapse of the Vadodara Bridge has raised some serious questions about the state's response to safety warnings that keep coming from time to time. According to a letter accessed by Times Now, concerns about the bridge's condition were raised as early as 2022. This letter, addressed to the collector's office, flagged critical issues with the structure, including vibrations in the pillars and the overall stability. Now, the document warned that the bridge was in a dangerous state and urged for an immediate stability assessment to prevent any kind of a mishap in the near future. It was then forwarded to the executive engineer, who was tasked with probing the matter and submitting a detailed report. Now, despite these red flags, these letters, the authorities appear to have failed to take any action, leading to this tragic collapse. Let me now go across to my colleague Hiten, who's been tracking the developments on the story very, very closely. Hiten, हम कल भी यही बात डिस्कस कर रहे थे कि कुछ समय पहले भी इस ब्रिज को लेके कुछ सवाल खड़े किए गए थे, कुछ वार्निंग्स दी गई थी, लेकिन अथॉरिटीज की तरफ से कोई काम न होने के चलते कल देखिए क्या हो गया, पूरा ब्रिज कोलैप्स हो गया, 13 लोगों की मौत हो गई। नाउ गिव अस मोर डिटेल्स ऑफ दिस लेटर, जो लेटर आपने एक्सेस किया है। बिल्कुल, देखिए, वो ग्राम पंचायत के जो सदस्य है इसी पादरा और आजू बाजू के मुजपुर के जो गांव के पंचायत के सदस्य हैं, उनकी तरफ से ये 2022 में लेटर्स लिखे गए थे और उन्होंने उसी वक्त ये कह दिया था कि इस ब्रिज को तुरंत ही हैवी व्हीकल्स के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो ब्रिज जर्जरित हो चुका है, वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, मैं आपको बता दूं, इस ब्रिज के इर्द गिर्द भी उन्होंने 2017 से लगातार यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किए थे। कई तरह की चिट्ठी लिखी गई थी, लोगों की तरफ से भी लिखी गई थी। एक्स एमएलए जिनसे कल मैंने बातचीत की थी, जो कांग्रेस के थे एक्स एमएलए यहाँ पर 2017 में, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि 2020 में उस वक्त के जो मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजय रूपाणी थे, उनसे उन्होंने सीधे तौर पर अपील कर दी थी कि अगर कांग्रेस एमएलए से किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो अपना इस्तीफा दे देते हैं एमएलए पद से, लेकिन इस ब्रिज के लिए कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, वो अब तक निकला नहीं। हालांकि जो करंट एमएलए है बीजेपी के, उनका कहना है कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, उसी आधार पर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने 212 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए नया ब्रिज बनाने के लिए, लेकिन टेंडर प्रक्रिया शुरू हो उसके पहले ये हादसा हो गया। हालांकि ये इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर इस ब्रिज को, ये जो टैंकर वहां पर लटका हुआ नजर आ रहा है, उस तरीके के हैवी व्हीकल्स के लिए बंद कर दिया जाता और उन्हें सौराष्ट्र के रूट के लिए किसी और रूट से डाइवर्ट कर दिया जाता तो यह हादसा नहीं होता। क्योंकि ऊपर जब हम मौजूद थे, सुबह भी हमने तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से वहां पर गड्ढों में बड़े बड़े क्रैक्स नजर आ रहे, पूरी तरह से कंक्रीट उन गड्ढों में घिसा हुआ है, खत्म हो चुका था। ये जो कनेक्टर है ब्रिज के आसपास का, वो भी उनमें भी क्रैक्स बड़े
बड़े नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अनदेखी जरूर थी, लापरवाही जरूर थी। अब किन अधिकारियों की लापरवाही थी ये खैर जांच का विषय है। आज सुबह गुजरात सरकार मुख्यमंत्री द्वारा एक गठित कमेटी जो है यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने दौरा किया है और एक रिपोर्ट वो अब मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट के आधार पर गुजरात सरकार जो कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी भी आप देखेंगे रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि 15 की मौत हो चुकी है, 15 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कलेक्टर के हिसाब से 3 लोग अभी भी मिसिंग है, जिनके लिए ये रेस्क्यू जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। So you're now telling us, Hiten, that 15 people unfortunately have lost their lives because of this bridge collapsing and 3 are still missing. Hiten, request you to stay on with us. In fact, we have some more breaking inputs as well coming in at this point in time. And viewers, as far as the aftermath of Vadodara bridge collapse is concerned, now the lens is on dilapidated bridges in the state of Gujarat. We are being told that at least 18 bridges in different parts of Gujarat are in a critical condition right now. Here's a report sent by my colleague Hiten earlier. बरोड़ा ब्रिज जहां पे कॉलेप्स हुआ है, उसी घटनास्थल की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए किस तरीके से 2 पिलर के बीच का ये हिस्सा जो है वो पूरी तरह धराशायी हो गया और करीब 5 से 6 गाड़ियां जो है उसमें चली गई। अगर मैं आपको यहाँ की थोड़ा आगे आकर अगर मैं अपने विजय को कहूंगा कि तस्वीर दिखाए, तो ये जो टूटा हुआ हिस्सा है, अगर उसके बीच का हिस्सा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये ब्रिज किस तरीके से जर्जरित था और किस तरीके से टूटा। देखिए, जब सवेरे करीबन यही वक्त था जब कल ये हादसा हुआ है, 24 घंटे हो चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और अगर इस ब्रिज की दूसरी मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए पीछे की तरफ भी अगर आपको नजर आएगा कि गड्ढे देखिए किस तरीके से आपको जगह जगह पर नजर आएंगे। गड्ढे भी भरे पड़े हैं और इस ब्रिज को लेकर सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि 2017 से लगातार मांग की जा रही थी कि हैवी व्हीकल्स को बंद किया जाए, लेकिन बंद नहीं किया गया, इसे मरम्मत कराकर लगातार चलाया गया और उसके बाद ये हादसा हुआ। अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आखिरकार जवाबदेही किसकी रहेगी, अब ये तय गुजरात सरकार को करना है। And we have some more breaking inputs coming in amid calls for accountability. Now there are some more shocking details, viewers, that have emerged. What we can tell you is that at least 12 bridges got damaged in the last 5 years. And we have some more inputs. For example, more than 12 bridges have seen damages in Gujarat in the last 5 years. In fact, that starts from January 2020 and goes up till July 2025. Let me go back to my colleague Hiten, who continues to be live with us for more on this. Hiten, और क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं, क्योंकि इस ब्रिज कोलैप्स के बाद जो पिछले कुछ सालों में हुआ है वो सारी चीजें भी अब निकल के सामने आ रही हैं। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो ताजा खबर मिली है उसके हिसाब से 12 ब्रिज जो है वो डैमेज हुए थे लगभग पिछले 5 सालों में। बिल्कुल, देखिए पूरी लिस्ट है। बीते 5 सालों में अगर देखा जाए तो 12 से ज्यादा ब्रिज जो है वो डैमेज हुए, टूटे, क्षतिग्रस्त हुए। मैं आपको लिस्ट गिनवा देता हूँ। 24 जनवरी 2020 को महसाना में खारी नदी पर बना ब्रिज बैंड हुआ था। 21 दिसंबर 2021 को अहमदाबाद का मोहम्मदपुरा ब्रिज का हिस्सा टूटा था। 30 अक्टूबर 2022 मोरबी में हादसा हुआ था, कितना बड़ा, 135 लोगों की मौत हुई थी। 2022 में अहमदाबाद में हाटकेश्वर ब्रिज की स्टेबिलिटी रिपोर्ट पर सवाल खड़े हुए, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। उसे तोड़ने के लिए अभी भी प्रक्रिया जो है वो जारी है। 23 अक्टूबर 2023 पालनपुर में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा टूटा था। 24 फरवरी 2024 महसाना में महसाना और विसनगर को जोड़ने वाला एक ब्रिज का हिस्सा दब गया था। फिर 30 जुलाई 2024 सूरत के सारोली में मेट्रो का ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ था। 26 अगस्त 2024 को मोरबी के हलवद में ब्रिज धराशायी हुआ था। 27 अगस्त 2024 को सुरेंद्रनगर के चोटीला में ब्रिज बारिश की वजह से धराशायी हुआ था। 5 नवंबर 2024 को आनंद में बुलेट ट्रेन का निर्माणाधीन ब्रिज का हिस्सा टूटा था, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हुई थी। जून 2025 में ही बोटाद में पाटलिया नदी पर बना पुल बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ था और ये 9 जुलाई को यानी कि कल 9 जुलाई 2025 को ये
वडोदरा आनंद को जोड़ता सौराष्ट्र की ओर, मध्य गुजरात से सौराष्ट्र की ओर जाने वाला ये गंभीरा ब्रिज, जिसमें अब तक 15 की मौत हो चुकी है, ये कहीं ना कहीं ये आंकड़े दिखाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दी तो एज पर सोर्सेस मेरे पास 18 ब्रिज के लिस्ट और है जो नेशनल हाईवे पर बने हुए हैं, जिसमें से 13 ब्रिज जो है नदी पर बने हुए हैं और वो इस वक्त जर्जरित स्थिति में है। All right, Hiten, I'm interrupting you there, but thank you very much for the moment for joining us with your inputs. We'll keep coming back to you for more on